அதிகமாக நேசிக்கும் பரலோக பிதாவே, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, இதோ இந்த கூடுகைக்காக நன்றி சொல்கிறேன். इस धन्य समय के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। உமது பிள்ளைகளை ஒரே கூடையின் கீழ் வைத்திருக்கிறதற்காக நன்றி சொல்கிறேன். तो तेरे सारे बच्चों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर रहा है, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। மூடுவதற்காக நன்றி. तेरी महिमा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। இருந்தவர்கள் இன்று இல்லை, ஆனால் நீர் எங்கள் ஜீவனை தந்தீர், அதற்காக நன்றி சொல்கிறேன். कल काफ़ी लोग हैं जो जिंदा थे, आज नहीं हैं, पर तूने आज हमें एक और मौका दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। இயேசுவே, இந்த நாளில் நீர் எங்களை ஜீவனோடு தந்ததற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு கர்த்தாவே. इससे तूने आज ये धन्य दिन हमें दिया है, तो कोई मकसद है तेरी वजह से। இந்த நாளில் நீர் எங்களை இன்னும் மாற்றி அமைக்க நீர் கொடுத்த அந்த தருணத்திற்காக நன்றி சொல்கிறேன். और हम सबको एक रूहानी बदलाव की तरफ तू लेके जा रहा है, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। நோவாவின் காலத்தில் நோவா சொல்லும்போது அது ஒரு கேட்டு உள்ளே நுழையாததை போல இதோ உமது வார்த்தையை கேட்டு நாங்கள் கீழ்ப்படியாதபடி நீர் எங்களோடு இடைப்பட போவதற்காக நன்றி சொல்கிறேன். जैसे नूह के दिनों में तूने जानवरों के दिल में डाल दिया था कि तेरे वचन का पालन करके वो अंदर आए, वैसे ही आज तू अपनी तरफ से तो हुक्म चला कि हमारे दिल में भी तेरे कलाम ऐसे ही बस जाए। நோவாவும் அவர் குடும்பமும் உமது பேழைக்குள் வந்ததை போல இதோ நாங்கள் உமது பேழைக்குள் வரும்படியாக இது மனவாட்டியான நாங்கள் உமது கரங்களுக்கு வரப்போவதற்காக நீர் ஆயத்த பண்ண நேரத்துக்காக நன்றி சொல்கிறோம். वैसे ही उनके साथ नूह और उसके परिवार भी अंदर आए थे और अंदर आने की वजह से वो बच गए थे, वैसे ही आज हम भी बच जाएं तेरी कलाम के वसीला से। ஆகவே எங்கள் சிந்தை சொல் செயல் எல்லாவற்றையும் உமது கரங்களில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். हमारे सोच, हमारे दिल, हमारा सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। இயேசுவே, எங்கள் எண்ணங்களில் சத்துருவானவன் இடைப்படாதபடி கர்த்தாவே, और हमारे सोच पर इब्लीस हाथ ना डाले, எங்கள் இருதயங்கள் உமக்கு விரோதமாக இல்லாதபடி கர்த்தாவே, और हमारे दिल तेरे खिलाफ ना हो, எங்கள் உள்ளங்களில் எந்த கவலைகளும் கண்ணீரும் இல்லாதபடி கர்த்தாவே, और कोई भी दुख, दर्द या आंसू हमारे अंदर मौजूद ना हो। உமது வார்த்தை வரும்போது நாங்கள் மறுரூபமாகும்படியாக जब तेरे कलाम हमारे अंदर आए तो हमारे अंदर बदलाव शुरू हो जाए உமது ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக और तेरी आशीष भी हमें मिले। இதோ எங்களை தாழ்த்தி உமது கரங்களில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். हम अपने आप को छोटा करके तेरे हाथ में सौंपते हैं। நீர் பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம். ஜீவனுள்ள பிதாவே, तू बात कर और हम सुने, यीशु मसीह के नाम से ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. கடந்த வாரம் நமக்கு திருமணம் நடந்ததல்லவா? पिछले हफ्ते शादी हुई थी ना? ஹல்லேலூயா. इतने பேருக்கு தெரியும் திருமணம் நடந்ததா இல்லையா? कितने लोग को याद है कि यहाँ पर शादी हुई थी कि नहीं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உங்கள் கணவர் என்ன சொன்னார்? तो आपके पति से आपकी कौन सी बातचीत हुई? கணவர் வக்கம் சொன்னார். क्या आपके पति वकंस चले गए? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ கணவர் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். आज हमारे पति हमारे लिए आशीष लेके आए हैं। ஆமென். हालेलुया। इतने பேர் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். कितने लोग चाहते हैं कि वो आशीष आपको मिले? ஹல்லேலூயா. ஆமென். எடுத்துக்கொள்வோம். 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 2 कुरिन्थियाँ 4 16, 17, 18. 16 से लेकर 18 तक। 2 कुरिन्थियाँ 4 16 से लेकर 18 तक। इसलिए हम हयाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। நாம் சோர்ந்து போகிறதில்லை. இந்த வசனம் ஆகவே நாம் சோர்ந்து போகிறதில்லை. 16. ओके। நாம் சோர்ந்து போகிறதில்லை. எங்கள் புறம்பான மனுஷன் அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனை நாளுக்கு நாள் புதிதாகப்பட வேண்டும். हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் சோர்ந்து போகும்போது நமக்குள் ஒரு காரியம் நடைபெறாமல் போகிறது. जब हम दिल छोटा कर लेते हैं तो हमारे अंदर की काम रुक जाती है।
நமக்குள் இயேசு நமக்குள் மணவாளனாக இருக்கிறார். क्योंकि यीशु हमारा दुल्हा है, हमारे अंदर बसा हुआ है, எனக்குள் அவர் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். वो हमारे जरिए जिंदगी जी रहा है. நான் இதுவரை இயேசுவை கடவுளாக பார்த்தேன். हम अब तक यीशु को एक परमेश्वर के रूप में देख रहे थे, பரலோகத்தில் இருக்கிற இயேசுவாக நான் பார்த்தேன். जैसे स्वर्ग में यीशु है वैसा उसको देख रहे थे. நான் ஜெபித்தால் தான் அந்த காரியம் நடைபெறும் என்று ஜெபத்தை கூட கவலையோடு நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். और हम दुआ कर करके दुख उठाकर दुआ करते थे ताकि जाकर यीशु के कान में पड़े. ஆனால் கடந்த வாரம் முதல் அந்த இயேசு எனக்குள் இருக்கிறார். पर हमने ये बात समझ लिया पिछले हफ्ते कि यीशु मेरे अंदर बसा हुआ है என் தேவைகளை அறிந்தவராய் இருக்கிறார். और मेरे हर जरूरत को वो पहचानता है என்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறவராய் இருக்கிறார். और वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है. நான் மறந்தாலும் அவர் மறவாமல் என்னோடு இருக்கிறார். अगर मैं भूल जाऊंगा तब भी वो कभी भी मुझे नहीं भूलता. அந்த உணர்வை கடந்த வாரம் இயேசு நமக்குள் தந்திருக்கிறார். इस बात को पिछले हफ्ते यीशु ने हमें खुद एहसास दिलाया है. ஆனால் நமக்குள் என்ன பிரச்சனை என்றால் என்னுடைய மாமிச சிந்தனையில் ஒரு சோர்வு வந்து அது உண்மையா என்று நமக்குள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதாக இருக்கிறது. पर जिस्मानी सोच के साथ कभी कभी हम सवाल करते हैं कि क्या ये सच है. நமக்குள் கணவர் நமக்கு திருமணம் செய்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் என்றால் अगर हमारी शादी हुई हो और मान लें कि आपके पति कोई और देश में रहते हैं, அவர்கிட்ட எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வராத போது நமக்கு ஒரு சோர்வு வரும், நமக்கு ஒரு கவலை வரும். जब उनकी कोई भी खबर नहीं है तो हम दिल छोटा करते हैं, दुख उठाते हैं, காரணம் அவர் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார், நான் வேற தேசத்தில் இருக்கிறேன். क्योंकि वो और कोई हैं और मैं और कहीं हूँ. ஆகவே எனக்குள் ஒரு சோர்வு வரும், கண்டிப்பாக வரும். तो इसलिए दुख उठाते हैं, ये वाकई में होगा. ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போனோ ஏதோ ஒரு காரியம் எனக்குள் வரும், ईमेल வரும் என்றால் எனக்கு உடனே சந்தோஷம் வரும். पर अगर उनकी तरफ से कोई फोन कॉल या कोई ईमेल आया हो तो हम खुश हो जाते हैं, ஏனென்றால் என் கணவர் என்னோட தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார். क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बात की. அதே போல தான் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் वैसे ही रूहानी तौर पर என்னுடைய கணவரான இயேசு எனக்குள் இருக்கிறார் என்பதை जब हमारा रूहानी पति हमारे अंदर बसा हुआ है, வேண்டும் என்றால் अगर इस बात के एहसास होना है, எனக்குள்ள அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வர வேண்டும் என்றால் अगर हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई खबर आए, வேதம் சொல்கிறது तो कलाम में लिखा है ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடக்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்குள் உணர்வுகளை ஏற்படுத்த வல்லவராய் ये पाक रूह है जो दुख उठाकर हमारे लिए विनती करता रहता है और हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए भी यत्न करता है. இயேசுவுடைய உணர்வை நமக்குள் தெரியப்படுத்துகிறார் இருக்கிறார். और यीशु की कौन सी चीज है उस बात का एहसास भी पाक रूह दिलाता है. அதனால இயேசு நான் போய் தேற்றவாளனை உங்களுக்கு அனுப்புவேன். इसलिए यीशु ने कहा था मैं जाऊंगा और पाक रूह को भेज दूंगा என்னை குறித்து எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். और वो मेरे बारे में आपको सब कुछ सिखाएगा. அவர் என்னை குறித்து எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். मेरे बारे में हर चीज को वो सिखाएगा. அந்த இயேசு தான் நமக்குள் இருந்து பரிசுத்தாவியின் மூலமாக நமக்கு பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். और यीशु है जो पाक रूह के रूप में हमारे अंदर से काम करता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் அந்த பரிசுத்தாவின் உணர்வு இல்லாததால் பலன் இல்லாததால் தான் நம்ம பல நேரங்களில் சோர்ந்து போகிறவர்களாக இருக்கிறோம். और जब पाक रूह की एहसास नहीं होती है तो हाल जब ठीक नहीं होते तो दिल छोटा कर लेते हैं. ஒரு இமெயில் ஏதோ ஃபோன் வரவில்லை என்றால் நம்மளுக்கு எவ்வளவு சோர்வு வருகிறதோ அதே போல தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் என்றால் அந்த காரியங்கள் நடைபெறும் போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருகிறது. जैसे अगर ईमेल या फोन कॉल नहीं आया जैसा दुख होती है, वैसे ही अगर देखा गया तो रूहानी तौर पर भी जब वो कनेक्शन नहीं रहती तो दिल छोटा कर लेते हैं. அதே போல தான் இயேசுவுடைய உணர்வு எனக்குள் வராமல் இருப்பதற்கு காரணம் பரிசுத்தாவியினர் அந்த உணர்வு எனக்கு தராதனால், பரிசுத்தாவியினர் கூட எனக்குள் தொடர்பு இல்லாதனால தான் நான் சோர்ந்து போகிறவனா இருக்கிறேன். क्योंकि हम जुड़े हुए नहीं है इसलिए एहसास नहीं होती है कि पाक रूह अंदर है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உலகத்தில் நாம் அந்த இமெயிலோ அந்த போனோ நாம் செய்வதற்கு சிம் போடுகிறோம், அந்த சார்ஜ் ஏற்றுகிறோம், நிறைய அந்த அபன்மை எடுத்து நம்ம அந்த காரியங்களை செய்து கொண்டு அந்த போனுடைய காரியங்களை நம்ம பார்த்துக் கொள்கிறோம். आप एक तरफ से सोच के देखें, जब अगर ईमेल भेजना हो या कॉल करना पड़े तो आप एक टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिम कार्ड डालते हैं और जो भी करना है करके फिर आप जाके कॉल लगाते हो, ஏனென்றால் என் கணவரோடு நான் பேச வேண்டும், क्योंकि मुझे बात करना है मेरे पति के साथ கணவர் என்னோட பேச வேண்டும், और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ बात करें, நான் கேட்க வேண்டும், मुझे उनकी आवाज़ सुनना चाहिए, நான் அந்த உணர்வுகள் கடந்து போக வேண்டும். मेरी एहसास होना चाहिए कि वो ठीक है. என் கணவரையும் என்னையும் இணைப்பது ஒரு போன். तो अगर उनके साथ बात करना हो तो हम दोनों को जोड़ने वाली चीज़ फ़ोन होती है. ஹல்லேலூயா. அந்த हालेलुया. போனுக்காக நான் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பேன். तो इस फ़ोन की तरफ कितना ध्यान रखते होंगे. அது சார்ஜ் குறையும் போதெல்லாம் சார்ஜ் போடுவேன். जब कभी भी चार्ज कम पड़ गई तो चार्जर पे लगा देते हैं அதுக்கு அபன் மூலம் செலுத்தி கொண்டு நான் அதை பார்த்து கொண்டிருப்பேன். और हम अबनमो भी ठीक से पे करके रखते हैं. ஏன்னா அதுதான் எனக்கும் என் கணவருக்கும் உள்ள ஒரு கனெக்ஷனை ஏற்படுகிறது ஒரு போன். क्योंकि वो फ़ोन है जो आपके और आपके पति के बीच में आपको कनेक्शन देती है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. படிக்க தெரியாதவர்கள் கூட
போனை எடுத்து அதை எப்படி செயல்படுறது கூட கற்றுக்கொண்டு அதை செயல்படுகிறார்கள். लोग शायद अनपढ़ भी हो फिर भी फोन कैसे चलाना है उसको सीख लेते हैं. ஆமென். हालेलुया. அப்படி அது ஏனென்றால் என் தொடர்பு வேண்டும், என் கணவரோட எனக்கு தொடர்பு வேண்டும். क्योंकि उनके दिल की इच्छा ये है कि कैसे भी करके मेरे हस्बैंड के साथ मैं जुड़े रहूं. நாம் உலக காரியங்களுக்கு அந்த தொடர்புகளுக்கு நாம் முயற்சி செய்யும்போது जब दुनियावी चीजों के लिए हम यत्न करते हैं कि कैसे भी करके हम कनेक्टेड रहें, என்னுடைய ஆவிக்குரிய என்னுடைய மனவாளன் இயேசுவோட தொடர்பு கொள்வதற்கு நான் எவ்வளவு பிரயாசப்படுகிறேன் போனை போல பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்வது. तो हमारे साथ जो हमारा रूहानी दूल्हा है उसके साथ जुड़े रहने के लिए ये कौन सा फोन हम इस्तेमाल करते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த காரியங்களை இயேசு சொன்ன ஒரு காரியம், यीशु ने कहा நீங்கள் போய் காத்திருந்து பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு பலனடையுங்கள் என்று சீஷர்களுக்கு. आप सब जाओ और इंतजार करें पाखरू की, जब पाखरू आएगा तो आप बल पाओगे. ஏனென்றால் இயேசு ஆவியாக இருக்கிறார். क्योंकि यीशु खुद रूह में है. அந்த ஆவியான இயேசுவை நான் ஆவியை உணர வேண்டும் என்றால், अगर उस रूहानी यीशु को पहचानना है, உள்ளான மனுஷனை நான் உள்ளான மனுஷன் பலப்பட வேண்டும் என்றால், अगर मेरे अंदर जो मेरा रूह है उसमें बल पाना है, ஆவிக்குரிய உணர்வு எனக்குள் வர வேண்டும். अगर रूहानी एहसास होना है, அதுதான் வேதம் சொல்கிறது. 17வது வசனம் பார்க்கிறோம், 2 கொரிந்தியர் 4:17 பார்க்கிறோம். इसलिए हम उसी दूसरा कोरिन्थियां 4:17 में देखते हैं. காணப்படுகிறவர்களில் படிங்க அது வாசி. 17 को आप प्लीज पढ़ें. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है. आमीन. हालेलुया. காணப்படுகிறவர்கள் அல்ல, காணப்படாதவர்களில் நோக்கமா இருக்க நமக்கு அது சீக்கிரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான உபத்திரவம். आप 18 भी पढ़ें, वो हिंदी में 18 में है. காணப்படுகிறவர்கள் அல்ல. वही. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं. आमीन. 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 हालेलुया. காணப்படுகிறவர்கள் அல்ல, तो अनदेखी थकाना पड़ा दवेगला. காணப்படாதவைகள் அல்ல. காணப்படுகிறவர்கள் அல்ல. ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல, பார்க்கிறது வந்து देखी हुई, பார்க்கக்கூடியது. பார்க்கக்கூடிய. ஆமா. சொல்லிட்டீங்களா? ஆ. ஓகே. பார்க்கக்கூடியவைகள் அல்ல, பார்க்கக்கூடாதவைகளை நாம் விசுவாசத்தோடு கடந்து வர வேண்டும். तो विश्वास ऐसी है कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं उन बात की जिक्र नहीं की गई, जो अनदेखी है उन बातों की जिक्र कर रहे हैं हम. हालेलुया. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம் சரீரத்தில் முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பதனால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. क्योंकि हम चाहते हैं कि पाखरू की एहसास हो, पर हम सिर्फ जिस्मानी सोच के साथ यत्न करते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பரிசுத்த ஆவியை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இயேசுவானவர் ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறார். बट अगर पाखरू वाकई में आपको एहसास होना है तो यीशु ने कुछ किया था. பாருங்கள், நாம் எல்லாம் இயேசு क्या है? हम सब यीशु के कौन लगते हैं? நாம் யார்? மனவட்டினர். நாம் யார்? நாம் हम सब कौन है? அவர் சீஷரன்ற. நம்ம ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். हम सब क्या आश्रम में बैठे हुए हैं? मैं सीरिया और अफगानिस्तान में उட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி. जैसे सीरिया अफगानिस्तान से अभी पहुंचे हो. हालेलुया. நாம் யார்? हम सब कौन हैं यीशु के लिए? मनवटी. हालेलुया. हालेलुया. मनवटी மாதிரியா இருக்கிறோம். बट देखकर तो ये नहीं कह सकते कि आप दुल्हन. புரியுது, எனக்கு புரியுது. இயேசு வெளிநாட்டுல இருக்கிறார், அதனால கஷ்டமா. मैं समझता हूँ यीशु कहीं और देश पर है तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए ऐसे. புரியுதா? आपको समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? கணவர் வெளிநாட்டில் இருந்தால் மனைவி தூரத்தில் இருந்தால் மனைவிக்கு எவ்வளவு கவலையா இருக்கும். अगर पति कहीं और पे रहता है और पत्नी अकेली रहती है तो दुख तो होगी. போன் வரவில்லை எவ்வளவு கவலையா இருக்கும். ना फोन कॉल है या कुछ है तो दुखी तो होगी. அதே போல தான் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு. वैसे ही आप सब भी दुखी हो. இல்லையா? கல்யாணம் பண்ண உடனே இயேசு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டார். शादी करके छोड़ के चला गया. நீங்க சபைக்கு வந்தீங்க. पर आप सब यहाँ आए हो इकट्ठा होकर. இயேசு கிட்ட லெட்டர் வருமா? आप देखने आए हो कि लेटर आया है कि नहीं यीशु का? फोन வருமா? यहाँ कोई कॉल आएगा यीशु की तरफ से. இல்லையா? हालेलुया. हालेलुया. இன்றைக்கு फोन வந்திருக்கு. आज कॉल आया है. आमेन. आमीन. அது சந்தோஷமா சொல்லலாம். ஆமென். खुश होकर तो आमीन कहे. हालेलुया. 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 உங்க புருஷன் கிட்ட தான் லெட்டர் வந்திருக்கு. खुद आपका दुल्हन से आया है खत. हालेलुया. அது கூட சத்தம் இல்லையே. அவர் ஆசீர்வாதமான ஒரு கடிதத்தை நமக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். उसने खत में आशीष भेजा है. हालेलुया. हालेलुया. நாம் இன்று பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். आज हम कैसे भी करके प्राप्त करके जाएंगे. ஆமென். हालेलुया. பாருங்க, அவர் தன் மனவாட்டி
மணவாட்டி எப்படி இருக்கிறாள் என்று இயேசு நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றார். अगर यीशु सोच रहा है अपने दुल्हन के बारे में कि वो कैसी है அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றார். और क्या सोच रहे हैं कि उनको कैसे कैसे रहना चाहिए. வாசிப்போம். மத்தேயு 5வது அதிகாரம் मत्ती 5 3 4 5 6 3 से लेकर 6 तक. मत्ती 5 3 से लेकर 6 तक. धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन. हालेलुया. हालेलुया. பாருங்க, ஆவியில் எளிமை உள்ளவர் பாக்கியவான் சொல்றார். ஆவியில் எளிமை உள்ளவர் धन्य है वो जो मन के दीन है, அவர்களுக்கு பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது. क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். धन्य है वो जो शोक करते हैं. சாந்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். धन्य है वो जो नम्र है. நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं. இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். धन्य है वो जो दयावंत है. சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है. நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं. हालेलुया. हालेलुया. பாருங்க, அவன் மனவாட்டி ஆவியில் எளிமை உள்ளவளா இருக்கிறார். खुदा का दुल्हन ऐसा होना चाहिए कि वो मन में दीन हो. हालेलुया. हालेलुया. हम எல்லாம் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்களா இருக்கிறோம். हम सब, मैं मानता हूँ कि हम मन के दीन हैं. எத்தனை பேர்? कितने लोग मन के दीन हैं? हालेलुया. உங்க மனவாளன் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். मुझे नहीं पता, आपका दूल्हा जानता है. லெட்டர் எடுத்து வந்து இங்க தூதன் பக்கத்துல நிக்கிறார். वो दूत लेके आएगा खत, मैं वो पढ़ रहा हूँ. அது உண்மை என்றால் தான் அந்த லெட்டர் உங்களுக்கு கிட்ட கொடுப்பார். अगर ये वाकई में सच निकला तो आपको ये खत मिलेगा. हालेलुया. हालेलुया. துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். இரண்டாவது, धन्य है वो जो शोक करते हैं. துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். तो जो दुख उठाते हैं, धन्य है वो. பூமியில் சரிகிற பிறகுமா துயரப்படுகிறது எது? बट दुनिया में मान ले कि हम दुनिया के दुख उठाने की बात कहें துயரப்படுகிறவர்கள் மனவாட்டியான तो शादी करने के बाद कौन सी शोक उठाने की बात होगी. துயரப்படலாம். शायद यारोड மாமியார் மூலமாக கணவர் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டாரு, வீட்ல शायद आपके पति के परिवार के साथ कोई प्रॉब्लम हो, இல்ல நாத்தனார் மூலமாக, या शायद उनके कोई अगर बहन हो तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, இல்ல அந்த குடும்பத்தின் மூலமாக. या शायद उनके पूरे परिवार के साथ. அங்க துயரம் வருமா இல்லையா? तो वहां पर आपको दुख उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं. அப்ப என்ன பண்ணுவாள் அவர்? तो वो क्या करेगी? இயேசுவுடைய மனவாட்டி என்ன பண்ணுவா? अगर यीशु की दुल्हन है तो क्या करेगी? अंदर वाली सगी चुकवांगला. ஒரு ஆள் தான், மத்தவங்க அமைதியா सिर्फ एक है जो कहेंगे ये कि बाकी सब भी कुछ बोलेंगे. இயேசு கேக்குறாரு, என் பொண்ணு நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்காரு. क्योंकि यीशु पूछ रहे हैं कि कैसे हो आप सब, तो आपका जवाब देख रहे हैं. ஹalleluya. हालेलुया. துயரப்படுறவர்கள் பாக்கியவான்கள். நாம் துயரப்படும் போது இயேசுவானவர் சமாதானத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். धन्य है वो जो शोक करते हैं. जब भी शोक करना पड़े तो यीशु आकर आपको तसल्ली देगा. ஹalleluya. हालेलुया. சமாதானம் இல்லாமல் இருக்குதா, இயேசு சமாதானத்தை கொடுக்க போகிறார். अगर शांति और तसल्ली नहीं है, शांति और तसल्ली यीशु खुद लेके आएगा. வேதனையோட இருக்கிறீங்களா, வேதனையை தீர்க்க போகிறார். दुख उठा रहे हो तो दुख मिटाने आएगा. இயேசு சொல்கிற காரியம், நீ எல்லாவற்றிலும் பொறுமையா இருக்கும்போது நான் அவைகளை செய்ய வல்லவன். यीशु कहता है तू सब्र रख, मैं सब कुछ करूंगा. ஹalleluya. हालेलुया. மனவாட்டியானவள் என்னை நம்பி இருப்பதினால், நான் கைவிட மாட்டேன் என்று இருப்பதினால் அவள் எல்லாவற்றிலும் பொறுத்து கொண்டு இருப்பவளாக இருப்பாள். वाकई में अगर हम भरोसा रखते हैं यीशु पर, तो यीशु कहता है हर चीज का तू सब्र रख, मैं आकर एक एक करके पूरा करूंगा. அவள் என்னை உண்மையாக நேசிப்பதினால் அவள் நிச்சயமாக அவள் எல்லாவற்றையும் எனக்காக தாங்கிக் கொண்டு இருப்பாள். अगर पूरे दिल से वाकई में अगर हम प्रेम रखते हैं यीशु से, तो हम हर चीज को मानकर सब्र रखकर इंतजार करेंगे. ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. அவள் எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டு இருப்பாள் என்று இயேசு तो हर चीज की सहन शक्ति होनी चाहिए. பாருங்கள், அதே பகுதியில் 13வது வசனத்தை வாசிப்போம். उसी 5 का 13 पढ़ के देखें. तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए
और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார். इसमें लिखा है कि आप पृथ्वी के नमक हो, உப்பு என்பது உப்பு சாதமற்று போனால் எதற்கு உதவாது. पर अगर वो नमक बिगड़ गया तो किसी भी चीज की लायक नहीं रहेगी। அது உப்பு சாதம் என்பது எது? तो ये नमक में कौन सी चीज है जो नमकीन बनाती है उसको? உப்பு என்பது அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராடக்ட் அதுக்குன்னா இன்றைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் இருக்கு, அந்த காலத்துல ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை. இந்த வேதம் சொல்லப்படும் போது ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை. अगर नमक के बारे में हम ध्यान करें, उन दिनों में नमक इसलिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि उन दिनों में फ्रिज नहीं था। அந்த காலத்தில் அந்த ஒரு பொருளை வைத்து அதை சுற்றி உப்பை மூடி வைத்திருப்பார்கள். ஒரு பொருள் மேல ஒரு உப்பை எல்லாம் மூடி வைத்திருப்பார்கள். अगर खाने पीने की कोई चीज को हम सेफ रखना चाहते हैं तो उन दिनों में नमक के बीच में रखा जाता है, ஏனென்றால் அது கெட்டு போகாத இருக்கிறது. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बिगड़ ना जाए। எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? कितने लोग इस बात को जानते हैं ஒரு பொருள் கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்கு உப்பை कि उन दिनों में शुरुआत में नमक इसलिए इस्तेमाल होती थी ஏனென்றால் அந்த பொருள் கெட்டு போக கூடாது. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बिगड़ ना जाए। அதேபோல அந்த உப்பானது டேஸ்ட் கொடுக்கிறது. तो उसी समय अगर हम देखें तो नमक ऐसा चीज है जो हमारे खाने में नमकीन वाली टेस्ट लेके आती है। அதேபோல தான் நம்மை தேவன் இந்த பூமியில் வைத்திருப்பது, वैसे ही खुदा कहता है हमें इस दुनिया में खुदा ने रखा है மனவாட்டியாக இந்த பூமியில் வைத்திருப்பது, कि हम तो दुल्हन है फिर भी हमें दुनिया में रखा गया है। இந்த பூமி சரியில்லை தான், हाँ, ये दुनिया अच्छी जगह नहीं है, சரியில்லை தான், हाँ तेरी हाल भी ठीक नहीं है, நான் என் மனவாட்டியானவள் எல்லாவற்றிலும் உப்பை போல சாரமுள்ளவளாய் पर இருப்பாள். मेरी दुल्हन नमक जैसे नमकीन करने वाली अच्छी नमक बनेगी என்னுடைய சாயலை தரித்துக் கொண்டிருப்பவளாய் இருப்பாள். और मेरी रूप में वो रचाई गई है। உப்பு இல்லாமல் ஒன்று காரியம் நம்ம சாப்பிட முடியாது. உப்பு இல்லாமல் எதுவும் சாப்பிட முடியாது. आप सोच के देखिए, नमक नहीं है तो हम ठीक से खा पी नहीं पाएंगे। அதேபோல அந்த நாட்களில் உப்பு இல்லாவிட்டால் எல்லா பொருளும் கெட்டு போய்விடும். और वैसे ही उन दिनों में देखा गया तो नमक नहीं होती तो हर चीज बिगड़ जाएगी, அந்த உப்பு கூட தண்ணி வந்து மற்ற அது கெட்டு போகாமல் பாதுகாப்பது. क्योंकि वो नमक का एक और नजर अंदाजा ये है कि वो चीजों को बचा कर रखती है। அதேபோல தான் என்னுடைய சாயல், மனவாட்டியின் சாயல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் இயேசு சொல்கிறார், அவரை போல நாம் பிரதிபலிக்கப்படும் போது மற்றவர்கள் உப்பாக மாறுவோம். वैसे ही यीशु चाहता है कि जब हमारे अंदर से दूसरों को यीशु नजर आए तो हम भी नमकीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி மாறும்போது தான் இயேசுவும் நானும் இணைவதை நாம் உணர முடியும். जब हम उस हल तक पहुंच जाते हैं जहां पर बदलाव दूसरों को नजर आए तो मतलब ये है कि आप यीशु के साथ जुड़ रहे हो। வாசிப்போம் ஏசாயா 51வது அதிகாரம் 16வது வசனம். Isaiah 51 51 16 16 Isaiah 51:16 मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं तू मेरी प्रजा हो। हालेलुया। हालेलुया। நான் வானத்தை நிலைப்படுத்தி பூமியை அஸ்திவாரப்படுத்தி சீயோனை நோக்கி நீ என் ஜனம் என்று சொல்லத்தக்கதாக நான் என் வார்த்தையை உன் வாயிலை அருளி என் கரத்தின் நிழலினால் உன்னை மறைக்கிறேன். Amen. ஆமென். Amen. பாருங்கள், தேவன் தன்னுடைய ஜனத்தை என்ன சொல்றாரு? நீ என் ஜனம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று இயேசு சொல்கிறார். तो यीशु चाहता है कि लोग हमें देखकर कहें कि हम उनके हैं। மற்றவங்க மத்தியில் நீ என் ஜனம் என்று என்னை வெளிப்படுத்து. दूसरों के बीच में नजर आना चाहिए कि हम मसीही हैं மனவாட்டி என்று என்னை வெளிப்படுத்து. और दूसरों को नजर आना चाहिए कि मेरी दुल्हन है। அது எப்படி வெளிப்படுத்துவாய்? तो कैसे हम दिखाएंगे? நீ வாயை திறந்து பேசப்படும், जब भी हम मुंह खोल के बात करें, நீ வாயை திறந்து சொல்லும்போது தான், जब कभी भी किसी चीज का इकरार कर रहे हैं, நீ வாயை திறந்து ஒரு காரியத்தை ஆசீர்வதிக்கப்படும், நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய் என்று சொல்லப்படும் போது அந்த இடத்தில் இயேசுவை நீ வெளிப்படுத்தலாம் இருப்பாய். अगर कहीं पर जाकर हम कहते हैं आपको आशीष मिले, बरकत मिले, तो उनको आपके अंदर से यीशु नजर आएगा। உன் வாயிலிருந்து நல் வார்த்தைகள் புறப்படும் போது என் சாயலை தரித்துக் கொண்டிருப்பாய். जब कभी भी अच्छा भला हम कहते हैं तो मेरे अंदर से यीशु नजर आएगा। என் ஜனம் என்று நீ சொல்ல வேண்டும் என்றால் உன்னை பார்க்கும்போது, மற்றவர்கள் பார்க்கும்போது உன் நன்மையான காரியங்கள் நாவிலிருந்து புறப்பட வேண்டும். जब कभी भी लोगों से मुलाकात होती है और हम अगर उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम मसीही हैं, तो जो भी मुंह खोल के कहते हैं जैसा यीशु कहेगा वैसा कहना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுதான் தேவனுடைய சாயல்.
यही है खुदा के रूप। அதான் வேதம் சொல்றது, நான் நீ அப்படி செயல்படும் போது என்னை உன் கரத்தினால் மூடி வைத்திருக்கிறேன். इसलिए यीशु कहता है जब कभी भी तू ऐसे करेगा जो मैं कहता हूँ तो मेरा हाथ तेरे साथ हमेशा रहेगा। ஒரு நாவின் வாயிலிருந்து ஒரு நல்ல வார்த்தை புறப்பட ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய், நல்வாய் என்று பாசிட்டிவான வார்த்தை சொல்ல சொல்ல அது எனக்குள்ள வந்து ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கும். जब कभी भी जुबान खोल के हम कोई पॉजिटिव काम कहते रहते हैं, दूसरों को देखकर आशीष देते रहते हैं, तो हमारे लिए वो भी अच्छा भला बन जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நமக்கு எப்போதும் அந்த பாசிட்டிவ் தாட் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். तो हमेशा हमारे अंदर ये पॉजिटिव थॉट मौजूद होना जरूरी है। பாருங்கள், யோபின் புத்தகம் हम देखेंगे अय्यूब की किताब से 22வது அதிகாரம் उसका 22 22 yes 22 chapter 22 verses 28 29 30 28 to 30 22 उसका 28 से लेकर 30 तक पढ़े। yes. जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य है, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है और तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Amen. பாருங்கள், நீ வெளிப்படுவது என்னை போல் சாயலை போல வெளிப்படுத்த வேண்டும். मेरे जैसे लोगों को आप खुद नजर आना चाहिए दूसरों के बीच உன் में, வாயிலிருந்து வார்த்தை புறப்பட வேண்டும். और जुबान खोल के ऐसे बात करना चाहिए। புறப்படும்போது உனக்குள்ள ஒரு காரியம் உனக்குள்ள இருந்து செயல்படும். और जब कभी भी ऐसा करना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर से और भी काम है जो शुरू होगा। Hallelujah. हालेलुया। அடுத்து வேதம் சொல்கிறது, யோபு புத்தகம் சொல்கிறது, நீ ஒரு காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ணினார். और अगले वचन में हम देखते हैं कि अगर तू कुछ करना चाहता है, காரியத்தை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாய், अगर तू सोचता है कोई काम है उसको पूरा करना है, அதுக்கு உமக்கு நிலையாக்கப்படும் என்று நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். சொன்னால் ஆகும் என்று நினைக்க வேண்டும். विश्वास के साथ ये कहना चाहिए कि मैं खुदा की वजह से वो पूरा करूंगा। நீ நினைக்கும் போதே அது முடிந்து விட்டது என்று நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். जब सोच रहे हैं ये सोचना चाहिए कि वो काम पूरा हो गया। ஆமென். हालेलुया। இது நமக்குள் நம் வார்த்தை சொல்லப்படும் போதே நம் சந்தேகத்தோடு நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். आजकल कलाम जब हम सुनते हैं तो हम शक करते हैं, வேதம் சொல்கிறது, நீ நினைக்கும் போது சொல்லும் போது உன் பாதையில் அது வெளிச்சம் உண்டாகும் என்று. पर कलाम में लिखा है जब तू कहेगा कि काम पूरा हो जाएगा तो हर तेरे रास्ते पे तो वो रोशनी बन के आएगा। 28வது வசனம் சொல்கிறது, 29 சொல்கிறது, மனுஷர் ஒடுக்கப்படும் போது திடப்பட கடவான் என்று நீ சொல்லால் அவன் திடப்படுவான் என்று சொல்லப்படுகிறது. अगर हम किसी को देखकर कहें कि तू सौभाग्य हो तो वो सौभाग्य वाकई में होगा। हालेलुया। இன்று நாம் அதை செயல்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். आज हमें ये करना चाहिए। இன்று நாம் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறோம். आज हम एक चीज करेंगे। இதுவரைக்கும் நாம் அறிவில் தான் நிறைய காரியங்களை கர்த்தருடைய காரியங்களை பார்த்திருக்கிறோம். आज तक हम अक्ल इस्तेमाल करके खुदा की तरफ ध्यान करते गए। இன்று முதல் வார்த்தையின் மூலமாக விசுவாசத்தின் மூலமாக நாம் அந்த காரியத்தை செயல்பட போகிறோம். हम आज के बाद विश्वास के साथ रूहानी तौर पर इस बात को समझेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளில் இன்று நான் ஒரு சம்பவத்தை, ஒரு அற்புதத்தை நாம் பெற போகிறோம். आज जो हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, நாம் சொன்னால் ஆகும். क्योंकि जो हम बोलते हैं वही होगा। अगर हमने कह दिया तो हो जाएगा, மனவாளன் இயேசு எனக்குள் இருக்கிறார். क्योंकि यीशु मेरे अंदर बसा हुआ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் சொல்கிறது, மனுஷர் ஒடுக்கப்படும் போது திடப்பட கடவான் என்று சொன்னால் சொன்னபடி ஆகும். कलाम में लिखा है जो दुर्भाग्य हैं अगर हमने उनको देखकर कहा तू स्वभाग्य रहे तो वही होगा। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं? பாருங்க, 30வது வசனம் சொல்கிறது, குற்றமில்லாதவனை கூட தப்புவிப்பார், உம்முடைய கைகளில் சுத்த நிமித்தம் அவன் தப்பிப்போவான் என்று சொல்கிறார். हम देखते हैं 30 में कि जो निर्दोष ना हो उसको भी वह बचाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் யார்? நமக்குள் இருப்பவர் யார்? हम कौन है और हमारे अंदर कौन बसा हुआ है? நமக்குள் இருப்பவர் மனவாளன் இயேசு. हमारे अंदर जो बसा हुआ है वो हमारा दुल्हा है। வார்த்தையாக எனக்குள் இருக்கிறார். वो वचन के रूप में मेरे अंदर बसा हुआ है। நம்மை உருவாக்கின இயேசு எனக்குள் இருக்கிறார். हमें रचाने वाला यीशु हमारे अंदर बसा हुआ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? ஹல்லேலூயா. இருக்காங்க இல்லையா? விசுவாசத்தோடு சொன்னால் ஆகுமா ஆகாதா? तो अगर वो अंदर मौजूद हैं तो विश्वास के साथ जो कहेंगे वो होगा। ஆகுமா ஆகாதா? होगा कि नहीं? ஆமென். मैं இதுவரைக்கும் நாம யோசிச்சு நாம மற்றவர்களுக்கு தான் ஜெபிச்சிருக்கோம் நிறைய காரியங்கள். आज तक शायद हम दूसरों के लिए दुआ करते आए, இந்த காலையில நான் ஒரு 4 மணிக்கு இருக்கும்போது என்னோட பேசப்பட்ட காரியங்கள் தான் நான் உங்களோட பேசுகிறேன். पर आज सुबह 4 बजे मेरे साथ जो बात हुई वही मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके साथ। பேசிக் கொண்டிருக்கேன். நான் என்னோட வேற ஒரு காரியங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கேன்.
मैं खादिम के साथ बात कर रहा था तो खुदा मेरे साथ कुछ और बात कर रहा था, वही मैं बात कर रहा हूँ। பாருங்கள் இந்த நாளில் நம்மை உதாரணத்துக்கு கணவனை குறித்து மனைவி குறித்து கணவனானவர் பெரிய போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. हम देखते हैं पति पत्नी के बीच में पति पत्नी के खिलाफ होता है या पत्नी पति के खिलाफ होती है। அந்த ஆண்டவரே ஏன் இப்படி இருக்கிறார் என் கணவர்? वो शायद सोच रही होगी सुबह उठकर मेरा पति ऐसा क्यों है, இவர் இப்படித்தான், ये ऐसे ही है। இவரை நீதான் மாற்ற வேண்டும், आप उनको बदलने के लिए उनकी मदद करो, நீதான் மாற்ற வேண்டும்। तू बात कर खुदाया। மனைவி பார்த்து ஆண்டவரே இந்த மனைவி நீதான் மாற்ற வேண்டும், और पति कहता है इसको तू बदलने की या मेरा मदद कर, நீதான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும்। तू कुछ कर सकता है। அவர் நீ செய்ய வேண்டும் என்று தான் மனைவியை உன் கரங்களில் கொடுத்திருக்கிறார்। पर खुदा ने ये पत्नी या पति आपको दिया है ताकि आप खुद यत्न करें। நீ சரி செய்ய வேண்டும் கணவனை உங்கள் கையில் கொடுத்திருக்கிறார்। बिकॉज खुदा चाहता है कि आप बदल जाएं, तो इसलिए आपको पति या पत्नी दी गई है। நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை அவரிடத்தில் கொடுத்து நீ செய்யுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்। पर आपको जो काम करना चाहिए उसको आप नहीं करते और कहते हो खुदा तू कर। அல்லேலூயா। வேதம் சொல்கிறது உன் கணவனை பார்த்து நீர் அவன் சரியில்லை என்றாலும் என் கணவரை நீர் ஆஸ்வதிப்பதற்காக நன்றி என்று சொல்லப்படும் போது சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள், அவன் ஆஸ்வதிக்கப்படுவனாக மாறுவான்। अभी आप देखें, अगर आपका पति एक अच्छा बंदा हो या ना हो, पर आपके पति को देखकर आप हर रोज कहते जाएं कि वो अच्छा है, खुदा उसको बरकत दे, वो वाकई में अच्छा बन जाएगा, आपको बरकत भी मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। ஆனால் கணவர் வார்த்தை சொல்லிட்டு எங்கே இது திருந்த போகுது அப்படிதான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம்। पर आजकल की पत्नी ऐसी होती हैं, कहते हैं कि ये कब बदलेगा, ये नहीं सुधरेगा, இந்த ஆளை போய் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க, इसके साथ मेरी शादी पता नहीं क्यों मैंने की, நான் இதை விட அழகான மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன், मैं इससे बेटर कहीं और जाकर किसी और के साथ शादी करते, मैं क्यों आई यहाँ पर। இயேசுவே என் மேல் என்ன கோபம், अरे यीशु क्या तू इतना दुख उठा रहा है कि इसके साथ मैं फंस गई। இப்படி சொன்னா இயேசு எப்படி ஆஸ்வதிப்பார்? तो अगर आप ऐसे बात करते रहोगे तो आशीष कहाँ से आएगा। அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இயேசுவே இந்த கணவரை மாற்றுவீராக என்றால் ये सब कहने के बाद आप कहते हो यीशु तू उसको बदल दे, அவரால் எப்படி மாற்ற वो முடியும்? कैसे बदल सकता है। என் வாயில் வார்த்தை வைத்திருக்கிறார், मैं खुद कहता हूँ जो खिलाफ है, எனக்குள் ஜீவனை வைத்திருக்கிறார்। पर खुदा ने मेरे अंदर भी तो जीवन दिया है। தேவன் வேதம் சொல்கிறது மனிதன் தனிமையாய் இருப்பது நல்லதல்ல என்று ஏற்ற துணையை அவர்தான் கொடுக்கிறார்। क्योंकि कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा है कि इंसान अलग रहे, अकेला रहे तो अच्छी नहीं है, इसलिए खुदा ने उसको एक पत्नी दी। கணவனை குறித்து மனைவியானல் எப்போதும் ஆஸ்வதிக்கிறவா இருக்க வேண்டும்। तो पति को लेकर भी पत्नी की ये बात बनती है कि वो हमेशा उसकी आशीष के लिए दुआ करते रहे, மனைவியானல் கணவனை எப்போதும் ஆஸ்வதிக்கிறவா இருக்க और வேண்டும்। पत्नी भी पति को आशीष देते रहे। ஒருவர் அவருக்கு பிரச்சனை செய்தாலும் இயேசுவே நீர் கொடுத்த கணவனுக்கு நன்றி என்று சொல்லிக் சொல்லும்போது एक दूसरे के खिलाफ कुछ हो भी कोई नहीं, आप एक दूसरे को आशीष देते रहें। இல்ல கணவனான மனைவி பார்த்து ஆஸ்வதிக்கப்பட்டால் நீர் கொடுத்த மனைவிக்கு நன்றி சொல் என்று சொல்லப்படும் போது जब अगर पति आकर पत्नी को कहे कि खुदा ने मुझे जो पत्नी दी, खुदा को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, சொல்ல சொல்ல அந்த வார்த்தையானது கிரியை செய்து அந்த இடத்தில் நன்மையாக जितना ज्यादा आप ये कहते जाओगे उतना ज्यादा आपकी आशीष भी बढ़ती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। நாம் செஞ்சிருக்கிறோமா? क्या आपने कभी ये किया है? पिज्जा கேட்டு पिज्जा வரலன்னா அவ்வளவுதான்। अगर पिज्जा मांग लिया, पिज्जा नहीं आया तो गए कम से। எதுக்கு ஏதாவது கேட்டா வரலன்னா அவ்வளவுதான்। अगर और कुछ मांगा है और नहीं मिला तो प्रॉब्लम होती है। ஹalleluya। பாருங்க சாதாரண ஒரு காரியத்துக்கு வரலன்னா என் கணவர் அவன் மனைவியை வேற மாதிரி மாறி விடுவார்கள்। एक छोटी सी काम है, अगर वो नहीं हुआ तो पता नहीं कौन से रूप में बदल जाते हैं। கணவருக்கு என் மேல் அன்பே இல்லை என்று சொல்லுவார்। मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, என் வாயிலிருந்து புறப்படுற வார்த்தை தான் கிரியை செய்கிறது। बट मेरे जुबान से जो वचन निकलती है उसी वसीला से हमारे साथ भी वही होती है। அவன் அன்போடு पिज्जा வாங்கிட்டு வந்திருப்பான், वो प्यार से शायद पिज्जा लेके आ रहे होते। இந்த ஆளுக்கு அன்பே இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த पिज्जा கீழே விழுந்துடும்। जब आप कहते हो नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो पिज्जा हाथ से गिर जाती है। வரும்போது வெறும் கையோட வரும்। जब आएंगे तो खाली हाथ आएंगे, ஏன்னா நீ தான் சொன்ன அன்பே இல்லைன்னு கீழே விழுந்து क्योंकि ये खुद तू है ना, किसने कहा था कि मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए वो गिर गया। உங்க உங்க வாயிலிருந்து புறப்படுற வார்த்தைக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கு तो தெரியுமா? आपके जुबान से जो भी वचन निकलती है उसमें ताकत है। ஹalleluya। हालेलुया। எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு அப்புறமேட்டு கடவுளுக்கு போய் இயேசுவுக்கு அழுவோம்। ये सब कुछ हम बोल देते हैं, फिर जाके यीशु के सामने रोना शुरू करते हैं, ஏன் ஆண்டவரே என்று ये क्यों हो रहा है। அவர் வாய் திறக்க மாட்டார்। वो जवाब नहीं देगा। இதுதான் இன்று வரை நடந்து கொண்டிருக்கு। आज तक यही है जो हो रहा है हमारे साथ।
பொருளாதாரமும் இதனால் தடைப்பட்டு கொண்டு இதனால் தான் தடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. अगर देखें तो पैसों की कमी भी इसलिए होती है. இன்று ஒரு காரியத்தை நாம் செய்ய போகிறோம். आज हम एक काम करेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த நாள் கடைசி நாள் நம்ம வாழ்க்கையில் கஷ்டத்துக்குரிய கடைசி நாள் இந்த நாள். கஷ்டமெண்டா நம்ம குடும்பத்துடைய கஷ்டத்துக்கு கடைசி நாள். हमारे परिवारों में जो भी हम दुख उठा रहे हैं हम मानेंगे कि आज आखिर दिन है ये दुख उठाने का. சமாதானம் இல்லாத நாள் கடைசி நாள் இன்று. आज आखिर दिन होगा जब आपके अंदर शांति नहीं हो. பொருளாதாரத்துக்கு கடைசி நாள் இன்று. या पैसों की प्रॉब्लम हो तो आज आखिर का दिन है. எனக்கு என்ன தேவைகளோ இதோட தடைப்பட்டதோ அது கடைசி நாள் இன்று. मेरा जो भी जरूरत है मेरा जो भी रुकावट है आज उसका आखिर का दिन है. இந்த தேவன் எல்லாவற்றையும் கொடுக்க வல்லவராய். आज खुदा सब कुछ पूरा करेगा காரணம் எனக்குள்ள பரபர வார்த்தையானது ஜீவன் உள்ளதாய். क्योंकि मेरे अंदर से जो भी वचन निकलेगा उसमें जीवन होना जरूरी है. हालेलुया. வாயிலிருந்து தான் புறப்பட வேண்டும். ये हमारे जुबान से ही निकलना चाहिए. எனக்குள்ளிருந்து தான் அது புறப்பட வேண்டும். मेरे अंदर से ही निकलना है. இயேசு சொன்னது நான் உனக்கு மனவாளனாய் இருக்கிறேன். यीशु कहता है मैं हूं तेरे साथ. நான் உனக்கு ஜீவனை வைத்திருக்கிறேன். मैंने जीवन दिया है तेरे लिए. உனக்கு தேவையான கிரெடிட் கார்டு எனக்கு இந்த இதயத்தில் இருக்கிறது. तेरा जो भी क्रेडिट कार्ड की जरूरत है तेरे दिल में है. அந்த கிரெடிட் கார்டை எடுத்து நீ போட வேண்டும் என்றார். अगर वो जो क्रेडिट कार्ड आपके दिल में है उसको इस्तेमाल करना है. அந்த डिस्ट्रीब्यूटर வைக்க வேண்டும். आपको चाहिए कि आप कलाम का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको इस्तेमाल करें. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த கோட் வேர்ட் என்ன தெரியுமா? और उसका कोड क्या है आप जानते हो? விசுவாசம். विश्वास. என் தேவன் கொடுத்து விட்டார் என்று. कि मेरे खुदा ने मुझे दे दिया. விசுவாசத்தோடு சொல்லும்போது विश्वास के साथ जब आप बोलोगे, விசுவாசத்தோடு கோட் வேர்ட் போடும்போது विश्वास के साथ जब आप कोड डालोगे, நீ கேட்டது வெளியே வரும். जो भी आप मांगते हो वो निकलेगा. நீங்க போடும்போது जब आप कार्ड डाल रहे हो, வருமா வராதான்னு நினைச்சாலே अगर सोचोगे ये आएगा कि नहीं கார்டு உள்ள போயிடும். तो कार्ड अंदर रह जाएगा, ஒண்ணு வெளியே வராது. कुछ भी बाहर नहीं निकलेगी. இத்தனை பேருக்கு வெளியே வரணும். कितने लोग चाहते हैं कार्ड वापस आए? ஹalleluya. हालेलुया. ஏன் என்றால் நாம் யார் தெரியுமா? क्योंकि आप जानते हो कि हम कौन हैं. பிரசங்கி புத்தகம் பிரசங்கி எடுங்க. प्रसंगी நீதிமொழிகள் எடுத்துக்கோங்க. நீதிமொழிகள் எடுத்துக்கோங்க. एक्लेसियास्टिस प्रोवर्ब्स के बाद, नीति वचन के बाद सब उपदेश वी जी ओके ಅದೆಲ್ಲ ಎನ್ನೇ ವಚನ? 8th verses 8th chapter 4th verse 8th chapter 4th verses 8 का 4 पढ़ें प्लीज. क्योंकि राजा के वचन में तो समर्थ रहती है और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता? ஹalleluya. हालेलुया. ராஜாவின் வார்த்தை எங்கேயோ அங்க அதிகாரம் உண்டு. ஹalleluya. राजा का वचन जहां हो वहां पर अधिकार है. நீங்கள் யார்? तो आप कौन हो? ராஜாக்கள். आप सब तो राजा रानी हो. रानी अमा रानी अब रानी हो. ராணி. கொஞ்சம் லேட் ஆகும். बाद में पहुंचेंगे रानी तक. ராஜாவுடைய பவர் எவ்வளவு தெரியுமா? आप क्या राजा का ताकत का अंदाजा लगा सकते हो? தெரியல என்றாலும் தன் அதிகாரத்தை வைத்து செய்து கொடுக்கிறவர். अगर रानी अच्छी नहीं है तो अपना अधिकार इस्तेमाल करके उसको अच्छी बनाएगा. இத்தனை பேர் ராஜாவா இருக்கிறோம். कितने लोग यहाँ पर राजा हैं? ஹalleluya. हालेलुया. இந்த நாளில் இப்போது நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல போகிறேன். இந்த வாரம் முழுவதும் இந்த செய்து பாருங்கள். கர்த்தர் உங்கள் காரியங்களை இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் வரும்போது நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தை பார்க்க போகிறீர்கள். अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप पूरा हफ्ता करके यहाँ पर वापस संडे आकर देखो तो आप मुझे गवाही दोगे. யார் யாருக்கெல்லாம் கஷ்டமோ அந்த கஷ்டம் இன்றோடு நிற்க போகிறது. कितने भी लोग कहते हो कि मेरा ये तकलीफ है वो आज से खत्म हो யார் जाएगा. யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனை இன்றோட முடிவு. आपके जो भी मुसीबत है आज से वो मिट जाएगा. யார் யாருக்கெல்லாம் தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்க போகிறார். जितने लोगों की भी जरूरत है तो वो जरूरत पूरा हो जाएंगे. ஏனென்றால் நீங்கள் அவர் மனவாட்டியாக இருக்கிறோம். क्योंकि आप यीशु के दुल्हन हो மனவாளன் உங்களோட இருக்கிறார். और दुल्हा भी आपके साथ है அந்த வல்லமையான மகிமை உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது. और उसकी महिमा आपके अंदर बसा हुआ है. விசுவாசத்தோடு சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை जब आप विश्वास के साथ मुंह खोल के इकरार करोगे முதல் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என் வீட்டில் சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று कि आज के बाद मेरे परिवार में शांति हो. நீங்கள் இன்று முதல் இன்று போய் வீட்டுக்கு போங்க. आज आप घर वापस जाओ. உங்கள் சலோன்ல இருங்க. ஹால்ல உங்க ஹால்ல आपके हॉल में आप बैठे. நீங்க சொல்லி பாருங்க இந்த முதல் என் வீட்டுக்கு சமாதானம் வந்து. आप मुंह खोल के इकरार करके तो देखें कि आज के बाद मेरे घर में शांति और तसल्ली हो. கணவனுக்கு சமாதானத்தை கொடுத்து விடு. मेरे पति को तूने शांति दी. என் மனைவிக்கு சமாதானத்தை கொடுத்து मेरी पत्नी को तूने शांति दी. வீட்டுக்கு பொருளாதாரம் வந்து விட்டது. मेरे घर में कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी நன்றி இயேசுவே. और तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ. தேவையான சொல்லி நீ சந்தித்து விட்டீர் என்று சொல்ல. जो भी जरूरत है उसको इकरार करें और उसका शुक्र अदा करें कि खुदा ने पूरा की. உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படுற வார்த்தை வீட்டில்
வல்லமையாக புறப்பட வேண்டும். क्योंकि आप मुंह खोल के बात करना शुरू करोगे तो उसकी ताकत घर में नजर आएगी। எனக்கு பிள்ளையை கொடுத்து விட்டீர், அதற்காக நன்றி இயேசுவே. तूने मुझे एक बच्चा दिया है, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। சுகத்தை கொடுத்து விட்டு நன்றி இயேசுவே. तूने मेरी बीमारियों को दूर कर दिया है, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। பிள்ளை இல்லை, ஆனால் நீங்க சொல்லுங்கள், அந்த இடத்துல கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார். शायद बच्चा नहीं है, बट फिर भी आप इकरार करके देखिए, आपको मिलेगा। என்னோட சமாதானம் இல்லை, நீ சமாதானம் கொடுத்து விட்டமைக்கு நன்றி இயேசுவே. शायद आपका पति आपके साथ बात ना करता हो, फिर भी आप कहें कि शुक्र अदा करता हूं खुदा कि मेरा पति मेरे साथ बात करे। பொருளாதாரத்தில் நான் பிரச்சனையாக இருக்கிறேன், பொருளாதாரத்தை சந்திச்சிட்டதற்கு நன்றி இயேசுவே. पैसों की शायद प्रॉब्लम्स में आप हो तो आप कहें कि खुदा को देखकर कि मेरे पैसों की प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं। அது ஆகும் என்று இயேசு சொல்கிறார். जब आप विश्वास के साथ ऐसे बोलते तो यीशु कहता है वो ऐसा ही होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? कितने लोग विश्वास करते हैं? விசுவாசிக்க வேண்டும், விசுவாசிக்க வேண்டும். विश्वास रखना है। இயேசு இருக்கார் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु है? हालेलुया। அப்ப சொல்ல வேண்டும், சொல்லுவீங்களா? तो बोलना चाहिए ना, बोलोगे ना? சவுண்ட் வர மாட்டேங்குது. कोई आवाज नहीं आ रही, बोलोगे कि नहीं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்கு தான் கிரெடிட் கார்டு இருக்குறீங்க. ये आपका ही क्रेडिट कार्ड है जो रखा हुआ है। கிரெடிட் கார்டு வேணும்னா நீங்க வாங்க. अगर क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो बुलंद आवाज में बोले हाँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் சொல்கிறது உபாகம் 30 ड्यूट्रोनोमी को क्या बोलते हैं? सॉरी, व्यवस्था विवरण, उसका 30 का 14 और 15 जी, 30 का 14 और 15 11 படிக்க சொல்லுங்க. 11 से पढ़ें प्लीज। 15 வரைக்கும் 11 से लेकर 15 तक। 30 देखो ये जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हम उसको सुनाए कि हम उसे सुने, उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू उस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया। Amen, हालेलुया। வேதம் சொல்கிறது வார்த்தை என்ற ஜீவன் எங்க வைத்திருக்கிறார்? कलाम में लिखा है कि ये जीवन और मरण कहाँ पे रखा गया है। இயேசு யாராக இருக்கிறார்? यीशु कौन है? வார்த்தையாக இருக்கிறார். वो वचन है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு யாராக இருக்கிறார்? तो यीशु कौन है? அந்த வார்த்தை எங்க இருக்குது? तो ये वचन कहाँ है? இங்க இருக்கு. இங்க இருக்கு. जुबान में। நல்லா தெரியுமா? आप जानते हो कि इधर है। वो कहते हैं ये तो जुबान है। हम देखेंगे। பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது நாங்கள் அதை கேட்டு அதன்படி செய்யும் பொருட்டு அது எங்கள் நிமித்தம் வானத்துக்கு ஏறி வானத்திலும் அல்ல அந்த வார்த்தை. இந்த வசனம் ஆமா, 12 இருக்குது. அந்த வார்த்தை வானத்திலும் இல்ல சொல்லுங்க. அந்த வார்த்தை வானத்தில இல்ல, பரலோகத்திலும் இல்ல. तो ये वचन जो है वो आकाश में भी नहीं है। நாம் பரலோகத்தை நோக்கி பார்த்து தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். हम चाहते हैं कि हमें आकाश से मिले, ஆனால் வேதம் சொல்கிறது பரலோகத்திலும் அல்ல, पर कलाम में लिखा है वहां पर तो कलाम नहीं है, சமுத்திரத்திலும் அல்ல, ना समुद्र में है, கீழேயும் அல்ல. ना उसके नीचे, அது எங்க இருக்குது என்றால் தேவன் என்னை உருவாக்கும் போது அது என் இருதயத்தில் இருக்கிறது. पर वो वहां पर है क्योंकि खुदा ने मुझे रचाया है तो उसने पहले ही कलाम मेरे दिल में रख दिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வார்த்தையானது இருதயத்தில் இருக்கிறது. तो कलाम जो है दिल में बसा हुआ है, அதை உள்ளிருந்து நான் சொல்லும்போது, और जब कलाम दिल से निकाल के हम इकरार करते, விசுவாசத்தோடு சொல்லும்போது विश्वास के साथ जब हम इकरार करते हैं ஆம் என்றாகும். तब होती है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உன்னை பார்த்து சுகம் உண்டாகு என்றால் உனக்கு சுகம் உண்டாகும். अगर किसी को देखकर कहे तू शिफा पाले, उसको वाकई में शिफा मिलेगा। உன்னை பார்த்து நான் ஆசீர்வதிக்கப்படும்போது ஆசீர்வதிக்கப்படும். अगर किसी को कहे तुझे आशीष मिले तो वाकई में आशीष मिलेगा। பார்த்து அவர் காரியங்களை செயல்படும்போது அவன் செயல் உண்டாகிறது. अगर किसी के कमी को पूरा करने की यत्न करते तो पूरा हो जाता है। அப்படி இருக்கும்போது அந்த வார்த்தை என்னை குணமாக்குமா குணமாக்காதா? तो अगर ये कलाम उनके लिए काम आ रही है तो मेरे लिए काम आएगा कि नहीं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்று நாம் செயல்பட போகிறோம். आज हम करेंगे। நாம் ராஜாவுடைய பிள்ளை. हम राजा हैं, மணவாளன் இயேசுவுடைய மணவாட்டிகள் நாம். हम दुल्हा यीशु का दुल्हन है। இன்று இயேசு நம்மிடம் சொல்கிற காரியம்
आज यीशु कहता है, நீங்கள் வாயை திறந்து சொல்லும்போது சொன்னபடி ஆகும் என்று கர்த்தர். यीशु कहता है मुंह खोल के मुंह से पूरे दिल से इकरार करें वो पूरा होगा। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போக போகிறோம். आज घर वापस जाएंगे। இந்த வீட்டுக்கு போனதும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது என்ன இல்லையோ உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த இடத்தை சொல்லி அதை சொல்லி நாம் ஜெபிக்க நீங்கள் ஜெபியுங்க. घर वापस जाने के बाद जो भी आपकी जरूरत है या कमी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको इकरार करके दुआ करके देखें। हालेलुया. हालेलुया। கணவரை ஆசீர்வதித்தமைக்காக நன்றி இயேசுவே. जैसे मेरे पति को आशीष देने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। மனைவி ஆசீர்வதித்தமைக்காக मेरी पत्नी को आशीष देने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। சமாதானத்தை கொடுத்தமைக்காக நன்றி. मेरे परिवार में शांति लेके आने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। பிள்ளைகளுக்கு சுகத்தை தந்தமைக்காக நன்றி. मेरे बच्चों को शिफा देने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ऐसे कहकर देखते रहें, கர்த்தர் சுகத்தை கொடுக்கிறாரா இல்லையா? खुदा शिफा देगा। ஹalleluya. हालेलुया। எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் எப்படி வந்தாலும் நாம் உடனடியாக செய்வது நெகட்டிவான தாட்டை தான் பேசுகிறோம். जो भी हाल जब बदल जाती है तो हम नेगेटिव बात करना शुरू करते हैं। இவன் படிக்க மாட்டான், ये नहीं पढ़ेगा, இவன் இப்படி தான் நடப்பான், ये ऐसा ही करता है, இவன் அது மாதிரி தான் செய்வான். ये ऐसे ही करेगा। என் புருஷனுக்கு என்ன சொன்னாலும் மண்டையில ஏறாது. जो भी मेरे पति को मैं बोलती हूँ ना, उनके दिल में नहीं நான் बसती। என்ன சொன்னாலும் வேற மாதிரி தான் வாங்கிட்டு வருவேன். मैं जो भी कहूंगी तो वो दूसरा कुछ लेके आता என் है। பொண்ணு எப்போதும் என் போய் நான் போன பிறகு தான் எழுந்திருப்பா, தூங்கிக் கொண்டே இருப்பா. मेरी पत्नी हमेशा सोती रहती है, जब भी मैं वापस जाता हूँ तब भी सो रही होती। ஹalleluya. हालेलुया। இதே மாதிரி நினைச்சு அது நடந்து கொண்டே இருக்கும். ऐसे सोच सोच के हम करते हैं तो वही होती है आपके साथ। அது சொல்வது சில பேருக்கு சொல்வதுக்கு பயந்துகிட்டு தூங்கிக் கொண்டே இருக்குது, எப்பதான் எழுந்திருக்கும் சொல்லிட்டு பயந்து கொண்டே சொல்லாம போயிடுவோம். ऐसे भी जो कोई पति होते हैं जिनको डर लगता है कि कैसे मुंह खोल के बोलूं, तो दिल ही में सोचते हैं कि ये तो सो रही है, तो पता नहीं कब बदलेगी। அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா 8 மணிக்கு தூங்கணும், 9 மணி வரைக்கும் தூங்குவோம். और अगला दिन देखते हैं सोचने की वजह से 8 बजे के बगैर 9 बजे उठेगी। அடுத்த நாளுக்கு நீங்க சமைக்கணும்னு சொல்ற வரைக்கும் அவங்க தூங்குவாங்க. और उसके बाद देखा गया तो पति को मजबूर होकर जाके उसको जगाना पड़ेगा। யார் சொல்றது அது? किसकी वजह से ये हो रहा है? किसकी वजह से? कौन कर रहा है ये सब? நான் தான் சொல்றேன், मेरी वजह से है, இது நல்லா தூங்கி கொண்டு இருக்கு. क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो सो रही है, அவ நல்லா தூங்குவாங்க தான். वो ऐसे ही सोएगी। நீங்க சொல்ல வேண்டும், आपको बोलना चाहिए। என் மனைவி நாளை முதல் எழுந்திருப்பார், कल से वो जल्दी उठेगी, 7 மணிக்கு எழுந்திருப்பார், 7 बजे उठेगी, அவள் எழுந்து காஃபி கொடுப்பார், वो मुझे कॉफी देगी என் மனைவி எனக்கு இந்த சாப்பாடை செய்வார், और मेरे लिए कुछ बना के என் देगी, மனைவி இதை செய்து முடிப்பாள் என்று मेरे लिए वो करेगी। தூங்குறவள் கூட எழுந்து வேலை செய்ய தொடங்கும். जो भी सो रही होती ना, खुदा उसको जगाकर करवाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை ஜென்ஸுக்கெல்லாம் சந்தோஷம். कितने पति हैं जो खुश हुए हैं। ஹalleluya. इनिमेल उंगल मனைவி தூங்காம வேலை செய்யணும்னு சொல்லி பாருங்க. अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपका सेवा करे, आप ऐसे विश्वास के साथ बोल के देखें। ஆமென். हालेलुया। வீட்ல சொல்லுங்க, घर जाके बोले आप। தூங்கி கொண்டு இருக்கும்போது ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். जब सो रही है तो खड़ा होकर कहना है, खुदा तेरी महिमा हो। என் மனைவி காலையில 6 மணிக்கு எழுந்ததற்கே ஸ்தோத்திரம். 6 बजे वो उठने वाली है, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। 5 மணிக்கெல்லாம் வயிறு ஏதாச்சும் செஞ்சு ஏத்தி வச்சிரு, தேவன் எழுப்பி. खुदा कैसे भी करके चाहे 5 बजे भी उसको जगा लेगा கண்ணோடு பேச வைப்பார். और पति के साथ बात करेगी। ஹalleluya. हालेलुया। விசுவாசிக்கிறீங்களா? क्या विश्वास करते हो? ஆமென். அதே மாதிரி மனைவியும் என்ன பிரச்சனையா நீங்கள் பாசிட்டிவான சொல்லி இயேசுவின் நாமத்தில் எனக்கு கொடுத்து விட்டீர் என்று சொல்லுங்க। वैसे ही पत्नियों को भी मैं कहता हूँ कि जो भी चीज नेगेटिव हो, आप उसको पॉजिटिव में आपके मुंह खोल के बोलते जाएं, वो बदल जाएगा हाल। ஆமென். हालेलुया। பாருங்கள், ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவம். யாத்திராகமம் ना मामा ஆமா, என்னாகமம் गिनती नंबर्स। பாருங்க, ஒரு காரியம் இதே போல தான் மோசேக்கு ஒரு சம்பவம் ஏற்படுகிறது. हम देखते हैं कुछ ऐसा ही हुआ था मूसा के साथ। அந்த மோசேவுக்கு ஜனங்கள், எகிப்தில ஜனங்கள் அவர்களுக்கு இறைச்சி வேண்டும், இறைச்சி சாப்பாடு வேண்டும். हम देखते हैं ये जो लोग थे मूसा के साथ, वो चाहते हैं कि वो कुछ खाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ये चाहिए ऐसा करके। அப்ப அவருக்கு ஜனங்களை குறித்து ஒரு கவலை, और मूसा दुख उठा रहे हैं लोगों के लिए, ஜனங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணுகிறார்கள் எங்களுக்கு இது வேண்டும் என்று. पर लोग कहते हैं हमें ये चाहिए। இந்த குடும்பத்தில் கணவருக்கு ஒரு கவலை இருக்கலாம், आज शायद पति दुख उठा रहा है மனைவி மூலமாக இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகிறது, कि पत्नी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, சந்திக்கும்படியாக मुझे ये कैसा पूरा करना है। கணவனுக்கு இது சோதனை வரல, மனைவி மூலமா இதை சந்திக்க வேண்டியது. या शायद पत्नी पति को तकलीफ दे रही होगी। மோசே என்ன செய்கிறார் என்றால், तो हम देखेंगे कि मूसा ने क्या किया। 11வது அதிகாரம் 11வது வசனம். गिनती 11 का 11 11 नंबर्स 11 गिनती नंबर्स 11 का 11
तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से क्या बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाल दिया? மோசே கர்த்தரிடத்துல பேசுறார். हम देखते हैं कि मूसा यहोवा के साथ बात कर रहा है। ஜனங்கள் பாரத்தை எல்லாம் என் மேல வச்சிட்டீங்களா ஆண்டவரே? खुदा तूने तो सारे लोगों के जो बोझ है मुझ पर डाल दिया, நான் சுமப்பேன். मैं क्या करूं? இதெல்லாம் விடுதலை இல்லையா? मुझे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा? இன்றைக்கு ஒவ்வொரு கணவனும் அழுவுற காரியம் அதுதான். आज हर पति का दिल यही बोल रहा है, மனைவியை கொடுத்து இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குறீங்களா ஆண்டவரே? अरे ये पत्नी मुझे तूने दिया है, इतना दुख देती है கல்யாணம் मुझे। பண்ணாம ஃப்ரீயா இருந்திருப்பேன். अगर मैंने शादी नहीं किया होगा कितना अच्छा होता। மனைவியை கொடுத்து இவ்வளவு பிரச்சனை. तूने मुझे पत्नी दी, प्रॉब्लम्स है खुदा। கணவன் இல்லாம சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன். और औरत कहेगी कि पति जब नहीं था मैं खुश थी நான் ஜாலியா இருந்திருப்பேன். இவ்வளவு பிரச்சனை और इतना प्रॉब्लम्स नहीं होती। ஏன் ஆண்டவரே? ये क्यों हो रहा है खुदा? என்று நாம் அவர் மோசே கவலைப்பட்டதை போல நாம் கவலைப்படுகிறோம். जैसे मूसा दुख उठा रहा है, हम भी दुख उठाते हैं। கர்த்தர் அழும்போது தேவன் நம்மை சந்திக்கிறவரா पर जब हम रोते हैं ना तो खुदा हमारा दुख और बोझ हल्का करता है। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், கர்த்தர் சந்திக்கிற ஒரு காரியத்தை சந்திக்கிறார். तो हम देखते हैं खुदा यहाँ पर कुछ करता है। தேவன் அவர்களுக்கு சொல்ற ஒரு காரியம், तो खुदा कह रहा है, அவர்கள் இறைச்சி தானே வேணும் உங்களுக்கு, वसनम சாப்பாடு. वसनम வசனம் வந்து 18 18 11 का 18 आप पढ़ें। और लोगों से क्या है, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुमको मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र में ही बने थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। नेक्स्ट 19 20 वरेकमा 20 तक पढ़ें प्लीज। फिर तुम एक दिन या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नस्लों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र में से क्यों निकल आए। यहाँ मूसा के साथ खुदा बात कर रहा है, तो मैं लोगों का ख्याल रखूंगा, मैं मांस दूंगा। ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, 5 நாள் அல்ல, 10 நாள் அல்ல, 20 நாள் மாத்திரமல்ல, ஒரு மாதம் அளவுக்கும் நான் புசிக்க கொடுக்க போகிறேன். एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 5 नहीं, 20 नहीं, पर मैं हर रोज दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। தேவன் மோசேயோடு சொல்கிறார், खुदा मूसा के साथ बात कर रहा है, இன்று உங்களோட சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். आज आपके साथ बात करने को कह रहा है। இந்த நாளிலிருந்து உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் தீர போகிறது. आज के बाद कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, இந்த நாளிலிருந்து உங்களுக்கு வேதனை தீர போகிறது. आज के बाद दुख उठाने की जरूरत இந்த नहीं, நாளிலிருந்து பொருளாதாரத்தை சந்திக்க போகிறார். आज के बाद पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। ஏதோ ஜோக்குக்கு அல்ல, தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். खुदा वफादार है, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ। தேவன் செய்கிற வல்லவராய் இருக்கிறார். खुदा ने जो भी कहा है उस वायदे को पूरा करता है। ஆமென். हालेलुया। பாருங்கள், அந்த இடத்தை சொல்லப்படும்போது உங்களை போல தான் அந்த மோசே இந்த இடத்தில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள், இது நடக்குமா என்று அதே போல தான் மோசேவும் நினைத்தார். वहां पर जब खुदा मूसा के साथ बात कर रहा था, यही सोचता उसके अंदर भी, क्या ये वाकई में होगा? 21வது வசனத்தை வாசிங்க. 21 को पढ़े। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वह महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। हालेलुया। பாருங்கள், அவர் நினைக்கிற காரியம் என்னவென்றால், आप देखें मूसा क्या सोच रहा है। ஆண்டவரே, என்னிடத்தில் இவ்வளவு லட்சம் மக்களுக்கு என்னிடத்தில் ஆடுகள் இவ்வளவு தான் இருக்கிறது, मेरे पास इतने लाखों हैं, कैसे मैं उनको खिलाऊंगा? ஆடுகள் இவ்வளவு தான் இருக்குது, मांस तो इतना हमारे बीच में मौजूद नहीं है। நிறைச்சி போட வேண்டும் என்றால் எப்படி நடக்கும்? अगर इन सबको खिलाना है तो कैसे खिलाएंगे? ஒரு நாள் கூட பத்தாது, एक दिन के लिए भी काफी नहीं है। 30 நாளைக்கு நீ தருவேன் என்று எப்படி தருவேன்? तूने वायदा दिया है कि महीना भर खाएंगे, कैसे खाएंगे? ஆடு மாடுகள் பத்தாது என்று. मेरे पास जो भी है वो काफी नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। இதே போல தான் நாம் இந்த இடத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். वैसे ही इसी नजर से हम भी देख रहे हैं। என்னால் முடியுமா? क्या मैं कर सकता हूँ? எப்படி முடியும்? कैसे करूंगा? எப்படி பொருளாதார சந்திக்க போகிறது? ये पैसे कहाँ से आएंगे? நீங்க ஒரு சில சகோதரிகளுக்கு தன் கணவன் குடும்பத்தில் சமாதானம் எப்படி வரும்?
यहाँ पे कोई सिस्टर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरे परिवार में शांति कहाँ से आएगी। எவ்வளவு காரியம் செய்து விட்டேன், मैंने काफी कुछ किया है, எவ்வளவு ஜெபித்து விட்டேன், काफी कुछ दुआ भी हुई है मेरी, சமாதானத்துக்காக எவ்வளவு நான் இறங்கி விட்டேன். और शांति के लिए मैं पता नहीं क्या क्या मैं कर रही हूँ, கணவருக்கு சமாதானம் இல்லை, पर मेरे पति के अंदर शांति कभी नहीं आ रही, பிள்ளைகளுக்கு சமாதானம் இல்லை. मेरे बच्चों के अंदर भी नहीं है। நான் தினமும் ஒவ்வொரு வாரம் சபைக்குள் வருகிறேன், मैं हर रोज कलीसिया आ रहा हूँ தேவனை நோக்கி கண்ணீரோடு ஜெபித்துக் और खुदा की तरफ देखकर रो रो के दुआ करता हूँ। கொண்டிருக்கிறேன். பதில் இல்லை. आज तक जवाब नहीं आया। சொல்லுது, கண்ணீர் விட சொன்னாரா கர்த்தர்? कलाम में खुदा आपसे पूछ रहा है, क्या मैंने कहा आज सुबह आना है? மோசே கண்ணீர் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். मूसा वहां पे बैठ के रो रहा है, இந்த ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு நான் ஆடுகளை கொடுப்பேன், மாடுகளை கொடுப்பேன், நீ 30 நாள் சொல்கிறேன், பத்தாத என்று கண்ணீர் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். मूसा बैठ के रो रहा है कि तूने कह दिया, बट मैं कैसे खिलाऊंगा, कहाँ से आएगा, ये सोच के वो रो रहा है। அது எப்படி முடியும்? ये कैसे मुमकिन है? என் கணவர் என்னை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார், मेरा पति मुझे समझ नहीं रहा, என் மனைவி என்னை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார், मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती, என் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிறது, मेरी परिवार में शांति नहीं है, எனக்கு ஒரு பிள்ளைகளுக்குரிய காரியங்கள் தேவைப்படுகிற காரியங்களாக இருக்கிறது. बच्चों के लिए काफी कुछ है जो मेरी जरूरत है, இவைகளை எல்லாம் எப்படி சந்திக்க முடியும், எப்படி செயல்பட ये முடியும்? मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? கர்த்தர் உங்களை நினைத்தார் என்றால் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். पर अगर खुदा ने कहा है तो वो करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। மோசே இதே போல தான் அழுது கொண்டிருந்தான். मूसा भी ऐसा ही रो रहा है। கர்த்தர் சொல்ற காரியம் என்றால் இதுதான் இந்த நேரத்தில் உங்களுடன் பேசுகிற காரியம். खुदा आपके साथ इन वचनों के जरिए बात कर रहा है। வசனத்தை வாசிப்போம். अब 23 पढ़ें प्लीज, விசுவாசத்தோட வாசிப்போம். विश्वास के साथ बुलंद आवाज में पढ़ें। हालेलुया. यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। हालेलुया। ஆமென். हालेलुया। என்ன சொல்றாரு? என்ன தேவன் உங்களோட பேசுகிறார்? तो ये खुदा आपके साथ क्या कह रहा है इस वचन के जरिए? மோசேவை நோக்கி சொன்னதை போல உங்கள் ஒவ்வொருவரும் நோக்கி கர்த்தர் சொல்கிற காரியம். जैसे यहोवा ने मूसा से कहा, आप में से हर एक के साथ कह रहा है। கர்த்தர் கரங்கள் குறுகி போயிருக்கிறதா? खुदा पूछ रहा है, जो मैं कहता हूँ मैं पूरा क्यों नहीं करूंगा? கரங்கள் குறுகி போயிருக்கிறதா? क्या मेरे हाथों से मैं नहीं कर सकता? உங்களை உருவாக்கினவன் நான் அல்லவா? मैंने रचाया है तुम्हें, உங்களை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கினவன் நான் அல்லவா? माँ के कोख में पैदा मैंने करवाया, உங்களை கொண்டு வந்தவன் நான் इस அல்லவா? दुनिया में मैं लेके आया, உங்களை கணவன் மனைவியாக கொண்டு வந்து ஒருவனை சேர்த்தவன் நான் அல்லவா? आपको पति पत्नी भी मैंने बनाया, உங்கள் குடும்பத்தை இதுவரை வழி நடத்தி கொண்டவன் நான் அல்லவா? आपके परिवार को भी मैं चला रहा हूँ, உங்கள் தேவைகளை சந்திக்கிறவன் நான் அல்லவா? आपकी हर जरूरत को मैं पूरा करता हूँ। நான் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும்போது हर काम को जब मैं करता हूँ, உங்கள் ஞானத்தில் நீங்கள் உங்களை சந்தித்துக் கொண்டு கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள். आपकी अक्ल इस्तेमाल करके दुख क्यों उठाते हो? என்னிடம் நோக்கி பார்த்தீர்களா? क्या आपने मेरी तरफ कुछ बात உங்களுக்கு रखी? ஜீவனை வைத்திருக்கும் போது நாவில் முன் வல்லமையான வார்த்தை வைத்து பேசினீர்களா? आपके अंदर मैंने जीवन दिया है, जुबान पर मैंने ताकत दी है, क्या आपने उसको इस्तेमाल की? பிரச்சனை வரும்போது, கவலை வரும்போது, கஷ்டம் வரும்போது கவலைகளை குறித்து பேசினீர்களா? எங்க அதை குறித்து விடுதலை குறித்து பேசினீர்களா? जब कभी भी प्रॉब्लम्स होती हो या दुख हो तो आप सिर्फ उसका जिक्र करते हो, उसमें से छुटकारा की बात நான் कभी की? உங்களுக்குள் இருந்தால் நீங்கள் என்னை குறித்து இல்ல பேசியிருக்க வேண்டும். अगर मैं वाकई में आपके अंदर बसा हुआ हूँ, मेरी बात में बात करना चाहिए। என்ன சொன்னார்? यीशु ने क्या कहा? உலகத்தில் உபத்திரவம் உண்டு, திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன். दुनिया में प्रॉब्लम्स तो होंगे, पर खुदा ने कहा सब्र रखो, मैंने सारी दुनिया पर फतह पाई है। ஹalleluya. हालेलुया। உபத்திரவங்கள் மத்தியில் தான் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். सारे मुसीबतों के बीच में ही खुदा हमारे साथ है, உங்களோடு என்னோடும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். आपके साथ और मेरे साथ भी। நாம் சொல்ல வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான். हमें सिर्फ एक ही काम करना है। ஒரு பிரச்சனை வரும்போது இயேசுவே இந்த பிரச்சனைக்கு ஸ்தோத்திரம், விடுதலை கொடுத்து விட்டோगे நன்றி என்று சொல்ல जब कभी भी तकलीफ का सामना करना पड़े, उस तकलीफ को लेकर शुक्र अदा करें कि खुदा ये आया है मेरे आगे। அதுதான் எரிகோவை பார்த்து சொன்னது. यरीको में वही था जो लोगों ने किया था। துதியின் போது எரிகோ மாளிகள் மதில் கூட दीवार के सामने खड़ा होकर उन्होंने सिर्फ खुदा की प्रस्तिश की, खुद से वो गिर गई थी। எத்தனை எரிகோக்கள் இருக்கலாம், तो हमारे अंदर चाहे जितना भी चाहे एरिको हो, சோதனைகள் போராட்டங்கள் இருக்கலாம், आपके परिवार में जितना चाहे प्रॉब्लम्स हो, கர்த்தர் நம்மிடம் சொல்கிற வார்த்தை, खुदा कहता है உன் நாவிலிருந்து புறப்படுற வார்த்தை விடுதலை உண்டான வார்த்தை உங்களுக்குள் இருக்கிறது. तेरी जुबान से जो वचन निकलेगी उसमें ताकत है, उसको इस्तेमाल कर। हालेलुया। हालेलुया। நாம் எல்லாம் ராஜாவுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். हम सब राजा के बच्चे हैं। ஆமென். हालेलुया। பாருங்க தேவன் என்ன செய்கிறார் என்றால் பாருங்க 31 अब 31 पढ़ें प्लीज। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। हालेलुया। वाओ। பாருங்கள் ஒரு காற்றை கொண்டு வருகிறார் கர்த்தர்। तो खुदा
अपनी तरफ से अपनी ताकत इस्तेमाल करके आंधी लेके आता है। காற்று என்ன காற்று என்ன செய்கிறது என்றால் பூமியில் உள்ள எல்லா காடுகளையும் அந்த இடத்தில் வந்து போடுகிறது. 1 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு 30 அடி தூரம் மேலே காடுகள் விழுந்து கிடக்கிறது. तो हम देखते हैं कि उस आंधी की वजह से उनको इतना मिला कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक नजर तक मिले, वहां उनको सब बटेरे ही नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। தேவனுக்கு ஒரு காற்று போதும், खुदा के लिए आंधी काफी है, ஒரு வார்த்தை போதும், एक वचन काफी है, हालेलुया। वो पूरा हो जाएगा। विश्वास में नहीं करेंगे, ये विश्वास कितने लोगों के अंदर है? हम सब खड़े होंगे, विश्वास के साथ मांगेंगे कि हमें अभी इसी वक्त छुटकारा मिले। अगर खुदा आपको लेके आया है, इस कलाम को सुनने के लिए अगर खुदा ने मौका दिया है, अगर ये विश्वास भरी वचन आप तक पहुंच रही है। जब मूसा पूछ रहा था तो खुदा ने कहा, क्या मेरे हाथ से मैं नहीं कर सकता? क्या मैं नहीं कर सकता? ये मैं हूं तुझे रचाने वाला। विश्वास के साथ पूछ के देखें, तेरी जुबान से वचन तो निकले। जो भी आपकी जरूरत है अभी दुआ करोगे। हर एक को कोई तो है जो जरूरत है, हर एक के अंदर अलग अलग है। शायद पति की कुछ और हो, पत्नी की कुछ और हो, या बच्चों को लेकर कोई और हो, या आपके परिवार के लिए कुछ हो। पर अभी हम इकरार करेंगे, अभी मेरे पास नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, पर सिर्फ आप दुख उठा रहे हो। अभी दुख को निकाल के आप इकरार करोगे, हर एक मुंह खोल के दुआ करोगे कि यीशु मसीह के नाम से तूने पूरा किया है, शुक्रिया अदा करता हूँ। हर जरूरत का इकरार करके अब यही कहें, हम दुआ करेंगे। एक एक अपना मुंह खोल के, एक यहाँ मुंह खोले। यहाँ पे दूत मौजूद है, यहाँ पे दूत मौजूद है। यीशु हमारे बीच में है। यीशु कह रहा, मेरे हाथों से मैं कर सकता हूँ, मैंने तुझे रचाया है। आपके साथ बात करने वाला खुदा है। मेरा हाथ से मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तुझे शांति चाहिए, तसल्ली चाहिए, छुटकारा चाहिए, क्या चाहिए परिवार में? आप मांग कर देखिए। अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त खुदा बदलना चाहता है, आपके हालातों को बदलना चाहता है। ओ यस लॉर्ड, यस खुदाया। विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ मांगे। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको तसल्ली मिलेगी। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगे। यीशु मसीह के नाम से मेरे परिवार में शांति हो। यीशु मसीह के नाम से मेरे पति को छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से मेरी पत्नी को छुटकारा मिले। आप मांग कर देखें, बुलंद आवाज में अपने आप को सौंपते हुए मांगे, सौंपते हुए मांगे, पूरे विश्वास के साथ। ओ यस यस लॉर्ड, यस यस, तू कर सकता है खुदाया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ आपके जरूरतों का इकरार करते हुए मांगे। हर जरूरत का इकरार करें, चाहे परिवार का हो या बच्चों का हो। अभी और इसी वक्त खुदा पूरा कर रहा है। ओ यस जीसस, जीसस। Oh yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. पूरे विश्वास के साथ महसूस करके देखें। एक हल्की सी हवा, एक हल्की सी हवा को महसूस करें। यीशु आकर आपका हर काम पूरा कर रहा है। एक हल्की सी हवा। Oh yes, Jesus. Hallelujah. Oh, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो ऐसे ही करेगा अब। ओ यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 2 நிமிஷம் தான் ஜெபிக்க போகிறோம்। 2 मिनट दुआ करेंगे। காற்றை போல தேவன் ஒரு
அக்கினியை அனுப்பியிருக்கிறார். एक हल्की सी हवा है बट आग की महसूस वाकई में அனல் होगी. இங்கே சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. यहाँ पर वो अग्नि मौजूद है. விசுவாசிங்க. आप विश्वास रखें. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை சொல்லி இப்போது இயேசுவின் நாமத்தில் எனக்கு கொடுத்தமைக்காக நன்றி என்று சொல்லுவோம். आपको जो चाहिए उसको इकरार करते हुए शुक्र अदा करें. விசுவாசத்தோட சொல்லுவோம். विश्वास के साथ इकरार करें அக்கினியானது படுறதை நீங்கள் உணர போகிறீர்கள். और वो आग की महसूस आपके दिल में आएगी. விசுவாசத்தோட சொல்ல போகிறீர்கள். विश्वास के साथ कहेंगे. ஒப்பு கொடுங்க. अपने आप को सौंपे. अपने आप को सौंपते हुए வல்லமையான ஊற்றப்பட்ட वही आग की जो अग्नि है वो अपने ऊपर आपके ऊपर अभी और इसी वक्त उंडेल देगा. आपको मिलेगा. உங்களுக்கு செயல்பட போகிறீர்கள். आपके अंदर से काम करेगा अभी और इसी वक्त இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से हर एक को छुटकारा मिले. हर एक को छुटकारा मिले. ओ यस लॉर्ड यस जीसस. हर एक की जरूरत को तो पूरा करे अब्बा. हर एक की दिल की इच्छा को तो पूरा करे अब्बा. हर रोज खुदाया तू हमारा ख्याल रखता है. हमारे हर जरूरतों को तू जानता है. हमारे जरूरतों को तू पूरा करने वाला खुदा है. ओ तेरी रूह की अग्नि से तेरी रूह की अग्नि से और एक बार खुदाया तू उंडेल दे अब्बा. तू उंडेल दे खुदाया. मेरे अंदर से जो भी चीज तू भस्म करना चाहता है उन चीजों को तू भस्म कर दे अब्बा. और रूह में नहीं होने की ताकत से रूह में नहीं होने की ताकत से और एक बार अब्बा. ओ यस लॉर्ड वो हल्की सी हवा मैं भी महसूस करूं खुदाया. ओ मेरे अंदर से वो हर चीज को तू भस्म करके निकाल दे जो तू नहीं चाहता हो. ओ मेरे दिल के अंदर तू बस जा खुदाया. तू बस जा. तू काम कर. ओ यस जीसस. पूरे ईमान से मांगते हैं ஹல்லேலூயா. जीसस हालेलुया. இதிலிருந்து நாம் ஒரு காரியத்தை செயல்பட போகிறோம். आज के बाद हम एक काम करेंगे. வீட்டில் போய் இல்ல உங்களுக்கு தேவையானதை இல்லை ஆனா சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள். இயேசுவை நீ சந்தித்து விட்டமைக்காக நன்றி. वापस जाने के बाद आप याद रखें जो भी नहीं है हाँ हम जानते हैं नहीं है पर आप इकरार करोगे पूरा करने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ. हर चीज के लिए शुक्र अदा करें. हर चीज के लिए यीशु मसीह के नाम से शुक्र अदा करें. यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिला है. यीशु मसीह के नाम से मुझे मिल गया है. आप विश्वास के साथ कहते जाएं और खुदा पूरा करके जाएगा. आपके जुबान से जो भी निकलेगी यीशु की तरफ से आमीन करके जवाब आएगा. ओ हालेलुया. यस जीसस. थैंक यू लॉर्ड. ओ खुदाया तूने हर एक को आशीष दी. तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. हर एक के दिल में आशीष बनने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं. इनके अंदर से हर दुख दर्द मिट गया है. तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. शांति और तसल्ली देने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं. खुशी के साथ वापस लौटने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं. इनके हर जरूरतों को तो पूरा कर रहा है इसलिए तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं. और जो भी सोच रहे हैं तूने हर चीज पूरा कर दिया है क्योंकि खुदा कहता है मेरे हाथों से मैं करूंगा. आप मांग के देखें. यीशु मसीह के नाम से मांगे खुदा करेगा. यस जीसस हालेलुया. हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला खुदा है. हालेलुया. हमारा प्यारा पिता परमेश्वर हम सबको आशीष देने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं. आज तक हम आंसू बहा रहे थे. हम दुख उठाकर ये समझ रहे थे कि तू स्वर्ग में है पर हम भूल गए थे कि तू हमारे दिल में बसा हुआ है. अभी हम विश्वास के साथ इकरार करते हैं कि हमको सब कुछ मिला है क्योंकि मेरा दूल्हा मेरे अंदर बसा हुआ है. और जो भी मैं मांगूंगा तू पूरा करेगा. तू मुझे बच्चा दे सकता है. मुझे शांति दे सकता है. मेरे परिवार में तसल्ली दे सकता है. मेरे परिवार के हर जरूरत को पूरा कर सकता है. जब कभी भी मैं इकरार करता हूं तो तू करेगा. ये सब पूरा करने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. हालेलुया.
ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் இந்த நாளில் ஜெபியுங்கள். इस हफ्ते में हर रोज आप ऐसा ही घर पे जाकर दुआ करें. இயேசுவின் நாமத்தினாலே என்று சொல்லி ஜெபியுங்கள். यीशु मसीह के नाम से आप दुआ करते रहें. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சாட்சி நேரமாக மாறப்போகுது. अगला संडे हम देखेंगे कि कलाम नहीं होगा, गवाही ही गवाही होगी. हालेलुया. தேவன் சந்தித்து விட்டார். खुदा करेगा. ஆமென். हालेलुया. அப்படியே நாம் திருவனந்தபுரம் கடந்து போவோம். हम प्रभु भोजन की तरफ आगे கிரெடிட் கார்டு बढ़ें. பாஸ் ஆயிடுச்சு. आपका क्रेडिट कार्ड पास हो गया, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல போட்டாச்சு. डिस्ट्रीब्यूटर भी चल रहा है, பாஸ்வேர்ட் போட்டாச்சு. आपका पासवर्ड भी चल रहा है. ஆனா உங்க வாயில தான் இருக்குது பாஸ்வேர்ட். अभी बाकी सब आपके जुबान पे है. திங்கக்கிழமை இருக்கு, लांजी कल है, மறுதி இருக்குது, मार्जी है, மெர்க்குது இருக்குது. अगला दिन भी है. அந்த பாஸ்வேர்ட் ராங்கா போச்சுன்னா முடிஞ்சிடுச்சு. पासवर्ड कभी नहीं बदलना, यही पासवर्ड है. வருமா ஆண்டவரே என்னால் வராத போய்டும். कभी भी यही नहीं पूछना कि क्या होगा. ஹalleluya. हालेलुया. வந்து விட்டது என்று சொல்லிக்கொண்டே विश्वास करना है कि आ गया. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். அப்படி திருவனந்து கடந்து हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 से लेकर 31 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह से खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अब धन्यवाद करके उसे तोड़ी और खाया कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही करो। इसी रीति से उसने प्यारी की पीछे कटोरा भी लिया और कहा, एक कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तुम मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। तेरा लहू बड़ा कीमती कभी
Our beloved Father, 2000 years before, you made a New Testament. Today we remember that one, Father. Your blood and flesh. The salvation, the purification in our soul, in our body, and our feeling. Today we receive the word of our Father. Today onwards we get all the prosperities and wealthy, everything in the heaven and in the earth. Thank you, Father. Bless us. In the name of Jesus. Amen.